在印度议会的一场激烈辩论中，一位来自全印草根国大党的青年领袖站了出来，他的发言直击要害，把莫迪政府的执政成绩单逐条撕开，让人们看到了所谓世界导师光鲜口号背后的另一面。他的话语犀利，夹杂着嘲讽与痛心，更用一连串真实的数据把印度民生的困境赤裸裸地摆在众人面前。一开场，他就用一句极具冲击力的话定下基调：如今的印度人民是如此饥饿，甚至连欺骗也当饭吃。这句话让会场顿时安静了下来。他提醒人们，当年莫迪政府承诺要遏制通货膨胀，改善民生，但如今却将物价上涨解释为国际问题，完全撇清了责任。可他反问，如果真是全球性问题，那作为自称世界导师的印度为什么没有办法解决？为了让议员和公众切身体会到通胀的冲击，他举了个再日常不过的例子：一份印度传统素食塔利套餐。就在1年前，一份套餐的价格还是100卢比，但如今已经涨到了152卢比。看似几十卢比的差距，背后却是每个普通家庭钱包的沉重负担。更夸张的是具体物价涨幅，西红柿价格1年暴涨了 247%， 土豆涨了 180%， 大蒜涨了 128%， 就连油、盐、面粉这些最基本的生活必需品也普遍涨了 18%。 在这种情况下，以前人们提着一袋钱出门，能拎着一大袋粮食回家，但如今在莫迪所谓的甘露时代，人们带着同样的钱出门，回家时袋子里可能只有几颗土豆、西红柿和洋葱。他用这样鲜活的比喻，把冰冷的数据转化为所有印度人都能感同身受的生活画面。接下来，他把矛头对准宏观经济。他指出，印度家庭储蓄已经降到50年来的最低点，约 48% 的家庭入不敷出，支出远远超过收入。与此同时，印度的经济不平等达到100年来最高水平，政府债务更是惊人，总债务已经达到176万亿卢比，预计本财年末还会涨到185万亿卢比。这意味着每个印度人都要被迫背负约 12.5 万卢比的债务。他讽刺道，你们却把他们的无奈当成自己的力量。一句话让执政党最爱用的债务换发展说法显得分外刺耳。在就业问题上，他更是毫不留情。他提到莫迪总理当年许诺每年2000万个岗位，10年2亿个岗位，但如今这些承诺全都化为泡影。根据印度经济监测中心的最新数据，2024年6月，印度失业率已飙升到 9.2%， 相比2013至2014年的 4.9%， 几乎翻倍。尤其是女性群体，失业率高达 18.5%， 比10年前的 7.7% 增长了2倍多。而在农村地区， 43% 的女性工作者甚至是无薪劳动者。他无奈地引用一句诗意的感叹：落叶总会凋零，拾起的人却寥寥无几。人人都许下承诺，但兑现者却凤毛麟角。这句话既是在安慰年轻人，更是对政府的公开嘲讽。更让人警醒的是，印度正在经历严重的人才与财富外逃。他给出了几个触目惊心的数据：2018年至2023年，共有67万人放弃印度国籍，仅2022年就有 22.5 万人离开。同一年，约7500名高净值人士，资产超过8300万卢比，即约人民币680万元，选择移民海外。从2022年11月到2023年9月，短短10个月，近10万印度人因试图非法进入美国而被捕。这些数字表明，印度人无论是穷人还是富人，都在想尽办法逃离。他冷冷地回应莫迪常挂在嘴边的那句：我与所有人同在。数据表明，属于所有人的人，实际上不属于任何人。作为孟加拉邦的代表，他还揭露了中央政府与地方之间的资金博弈。他指责德里当局拖欠孟加拉邦高达 1.23 万亿卢比的款项，涉及多项国家重点计划，包括农村就业保障计划、总理住房计划、国家健康任务等。再加上预计的欠款，总额竟高达 1.71 万亿卢比。更荒谬的是，中央政府竟然因为颜色代码不匹配就拒绝拨款给孟加拉邦的医疗计划。他讽刺地问，你们所谓的携手共进，难道取决于颜色代码吗？
不喜欢某种颜色，就让孟加拉人民自生自灭。这种继母般的态度，让孟加拉邦的选民一次又一次地用选票回击，送给莫迪政府甜到发腻的印度甜球，再把他们赶回德里。在发言的最后，他强调，尽管中央政府多次试图打压孟加拉邦的发展，但在马马塔·班纳吉的领导下，邦政府依旧坚定履行对人民的承诺。比如，在医疗保障计划中，哪怕是一个贫穷的农民，也能在和富人同样的私立医院里接受最高50万卢比的治疗。他用这个场景作为结尾，在加尔各答的一家豪华医院里，一边是富豪接受手术，另一边的病床上却是一个普通工人同样享受着救治。这才是公平，这才是进步。ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी कि पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। सर, इनके बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए, और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। मैडम, भारत में एक मिडिल क्लास जो 1 साल पहले एक वेजिटेरियन थाली 100 रुपए में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपए की हो गई। टमाटर की कीमत 247% बढ़ गई, आलू की कीमत 180%, लहसुन 128% और तेल नमक आटा मैदा 18%। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृतकाल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। सर, माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? Ma'am, 74% of Indians are unable to afford a healthy diet. The household savings have plunged to a 50-year low. Around 48% of the households in this country are facing a financial crisis क्योंकि उनका खर्चा उनकी कमाई से ज्यादा है. The economic inequality in India is a 100-year high. The country's GDP growth rate for the second quarter 24-25 decreased to 5.4%, which is the lowest in 2 years. The government's total debt has reached a staggering 176 lakh crore, and the total debt is expected to soar up to 185 lakh crore by the end of the financial year. आज आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं. बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है. वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी. उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई. Ma'am, as per the latest report by CMIE, the unemployment rate has risen to 9.2% in June 2024 as compared to 4.9% in 2013-2014. Female unemployment rate is much higher at 18.5% in June 2024 as compared to 7.7% 2013-14. Around 37% of working women are unpaid. In rural areas, this figure is at a horrific 43%. प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 के बीच 6,70,000 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी. सिर्फ 2022 में ये संख्या करीबन 2,25,000 की थी. In 2022 alone, 7,500 high net worth individuals with a net worth of more than 8.3 crore or more left India. नवंबर 2022 से सितंबर 2023 सिर्फ 10 महीने में 96,917 Indians were arrested attempting to cross the United States illegally.
मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और बंगाल के साथ तो कुछ अलग ही रिश्ता है इनका। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ क्विड प्रो को, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। As per the available reports, as on 19 July, rupees 1.23 lakh crore is already due from the government of West Bengal against flagship programs like Manrega, PM Awas Yojana, Gram Sadak Yojana, National Health Mission, Central Food Subsidy. Further, 40,806 crore is projected dues against these schemes, bringing the total amount to a staggering 1.71 lakh crore. Madam, health care की schemes में सिर्फ फंड हमको दिया नहीं जाता क्योंकि कलर कोडिंग मैच नहीं करता है। सो आप सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं, इज इट हिंजिंग ऑन कलर कोडिंग? आपको रंग पसंद नहीं तो आप बंगाल के लोगों को पैसा नहीं दोगे और फिर आप आके बोलते हो कि हम बंगाल में जीत क्यों नहीं पाते। मैम, दिस इज द रीजन, दिस स्टेप मदरली एटीट्यूड, जिसके लिए बंगाल के लोग हर बार इनको बड़े बड़े रसगुल्ला खिलाकर वापस दिल्ली भेज देते हैं। Even after making several attempts to crush our aspirations and our economy, Bengal government stands tall and true towards the commitment towards its people. बंगाल में सिर्फ दीदी है तो मुमकिन है। The West Bengal government started transferring money to the bank accounts of 21 lakh people who worked for 100-day scheme without receiving any payments from the central government for Manrega. Even before Ayushman Bharat, in Bengal, Shastra Shati, a cashless scheme was launched, providing treatment cost up to 5 lakh for per person belonging to any strata of the society. आज कलकत्ता की किसी आलिशान प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां पे एक अमीर आदमी की चिकित्सा होती है, वही बगल वाले बेड में एक गरीब मजदूर, एक गरीब किसान की भी ट्रीटमेंट होती है। यही है ममता बनर्जी का विकास। और आपके अमृत काल में द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन डबल्ड इन द लास्ट 5 years। आप फार्मास्यूटिकल्स की, सर आरजीकर पे बात ना बोले, आपकी सीबीआई पे अभी तक कुछ बोल नहीं पाए। हम लोगों ने जो, हमारी पुलिस ने जो बोला था, दे आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट। सो उसके बारे में मत बात करें, ठीक है? आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें ना सर। सर, मेडिकल इन्फ्लेशन इज एट 14%। रेगुलरली लिए जाने वाले दवाइयों की कीमत 50% बढ़ गई। आप सिविल एविएशन के लिए ग्रांट्स मांग रहे हैं। एक एक डोमेस्टिक फ्लाइट, उसकी राउंड ट्रिप की टिकट 20 से 30 हजार में बिक रही है। आम आदमी आज हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज नहीं चल रहा, आम आदमी हवाई चप्पल बेच के हवाई जहाज चल रहा है। यू आर डिमांडिंग फंड्स फॉर एजुकेशन but conveniently ignoring the fact that 11 lakh children have dropped out of school according to your own data. आज भारत में सिर्फ 47.51% स्कूलों के पास कंप्यूटर की फैसिलिटीज है और उसमें 9% के पास इंटरनेट कनेक्शन। In law and justice, you are not being able to provide legal aid to more than 1% of the eligible population. In public enterprises, 5.1 lakh public sector jobs have disappeared in the last 10 years. रेलवे में करीबन 2.5 लाख पोस्ट बाकी हैं और उसमें से वैकेंसी है इन क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज। नए भारत में आजकल ट्रेन पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज्यादा चलती है। मुझे दुख लगता है इस सदन में ये कहते हुए मैडम कि मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बारुईपुर कोबी सुभाष मेट्रो एक्सटेंशन की मांग की थी। मुझे डिपार्टमेंट से ये चिट्ठी मिली जिसमें उन्होंने लिखा है दैट दिस प्रोजेक्ट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल एंड दिस प्रोजेक्ट इज अनरेम्यूनरेटिव। तो आपको अगर सब जगह से पैसा चाहिए तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग खुद के लिए आपको वोट देते हैं कि आपके फायदे के लिए वोट देते हैं। मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ, दिस वाज द रीजन, अपने प्रॉफिट के लिए आज इन्होंने सीनियर सिटीजन का कंसेशन भी बंद कर दिया और सीना ठोक के ये बोलते हैं कि 2022-23 अर्थ वर्ष में हमने 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिक से 2242 करोड़ कमाए। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैं 2 बात और बोल के खत्म कर दूंगी कि लोकसभा पे खर्च करके क्या फायदा मैडम, जब यहाँ पे विपक्ष को बोलने का अधिकार ही ना हो। लोकसभा के लिए भी तो ग्रांट मांगा है ना मैम। और अभी सर बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ना बेटी को पढ़ा पा रहे और ना बेटी को बचा पा रहे। बंगाल आए और देखिए कि ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपराजिता एक्ट में बिल पास किया है, कन्याश्री किया है। What's your idea? 谈谈你的想法吧。
这段视频的核心是反对派对莫迪政府经济治理的猛烈抨击。通过塔利套餐的涨价、西红柿的天价、家庭储蓄的崩塌、失业率的飙升、债务的累积以及人才与财富的外流，演讲者勾勒出一幅截然不同于官方宣传的印度现实图景。他特别强调了孟加拉邦在夹缝中求生存、求发展的艰难处境，凸显中央与地方政治的尖锐矛盾。一句话总结，这是印度议会里一次关于承诺与现实之间巨大落差的公开审判，也是普通印度人心声的真实写照。